Hello students, this is a video for revision. In the last 2 days we have studied about the features, definition and importance of planning, and today we will revise its definition, its features and its importance. As we all know that planning is the first and the foremost function of management. Our management process begins with this function. So what does planning means? It is what to do, how to do and when to do. Planning means deciding in advance what you want to do, how that will be done and when that job will be done. It means you decide what, how and when is to be done in your business. Along with that, you also decide where you want to do your business, when you will start that business, how you will perform your business, what you will do in your business, who will do that business and why you want to do that business. So each of these activities is decided in advance in planning, that is where, when, how, what, who and why. As we all know that planning is one of the management functions. Our management process begins with this function and planning provides you the base for all other management function. Whatever the management function, that is organizing, staffing, directing and controlling, all the other management functions assume planning as the base. All the strategies are formulated in planning on which all things are decided. So if you are worried about your future, you don't know what you should do in your future, what you want to do in your future, and you are worried about your future, because planning is the function which is always done for the future. It is a futuristic process which is always done for the future, that in future what we want to do. So if you are worried about your future, then plan first, because if you will plan, then each and everything will be decided in advance what you have to do in the future course of action. जैसे मान लीजिए कि अब आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे कि आपको किस तरह से अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, तो आप कभी भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. बिकॉज इफ़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल. अगर आप प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं तो इट मीन्स आपने पहले से ही सोच लिया है कि मुझे फेल ही होना है. अ गुड बिजनेसमैन always do the proper planning by analyzing the market and then he start his future course of action. So now we will study the definition of planning and its feature. In this video we will again revise the definition of planning and the features which we have studied in the previous videos. So what does planning means? Planning means looking ahead and chalking out future course of action to be followed. It is a preparatory step. As we all know that planning is a preparatory step which determines when, how and who is going to perform a specific job. It is a detailed program regarding future course of action. हम प्लानिंग में जो है वो आने वाले टाइम में हमें क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम एडवांस में डिसाइड करते हैं. प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, आप पास्ट के लिए कभी भी प्लानिंग नहीं करते हैं. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ प्लानिंग. What are the features of planning? Actually there are so many features of planning, and now we will study those features one by one in detail. So the first feature of planning is goal oriented. Planning is always done for the achievement of the objectives decided by the top level management. Whatever the main aim you have decided, whatever the main aim the businessman have decided, all his plans, all his policies will aims or directed towards the achievement of that specific goal. Second one is planning is an intellectual process. कोई भी पर्सन जो है वो प्लानिंग नहीं कर सकता है. प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल जो है वो चाहिए होता है प्लानिंग को करने के लिए. यू नीड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस्ड नॉलेज टू डू द प्लानिंग. प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव. इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन. प्लानिंग जो है वो हर लेवल पे की जाती है. टॉप लेवल अपने लेवल पे प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल अपने लेवल पे और लोअर लेवल जो है वो अपने लेवल पे प्लानिंग करता है. सारे के सारे लेवल्स जो है वो अपने अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं, बट नेचर ऑफ देयर प्लानिंग इज़ डिफरेंट.
प्रिसीड्स ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। प्लानिंग के बाद जो है वो आपके सारे के सारे मैनेजरियल फंक्शंस जो है वो स्टार्ट होते हैं। इट इज़ द बेस फॉर ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस. For example, you decided how to do in planning, then how to do it means the arrangement of resources, and arrangement of resources is a part of organizing process. So we prepare a base in the planning and then we do our organizing process. Planning is a continuous process. Planning जो है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. You have to plan continuously as per the changes which occurs in the business environment. As we all know that business works in a dynamic environment. So whatever the changes takes place in the business environment, we have to change our policies, we have to reframe our policies and strategies as per those changes. It is flexible in nature. Why it is flexible in nature? Flexible means which keeps on changing. So as business environment changes rapidly, so we have to make appropriate changes in our plans also, so that we can achieve success directed towards efficiency. Planning is always directed towards efficiency. You always aims at achieving your goals efficiently. आप हमेशा पोस्ट मिनिमाइजेशन पे जो है वो ध्यान देते हैं प्लानिंग में. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ रोल ओरिएंटेड. रोल ओरिएंटेड मीन्स कि जो भी प्लानिंग आप करते हैं, वट एवर द प्लानिंग यू हैव डन, all the planning will be aimed toward the achievement of your main aim. It is an intellectual process, which means you require a lot of intelligence, a lot of creativity to do the planning. It is all pervasive, which means it is an universal phenomenon which is applied by all the business units, whether the business unit will be small, large or medium. It is done at all the levels of the management, that is top, middle and lower. Precedes all managerial functions. It is the base for all the managerial functions. It acts as a support to all those managerial functions. It is a continuous process. Planning is a continuous process. As a businessman have to plan continuously about the changes in the business environment. As we all know that business environment is changeable, is dynamic in nature. So one have to change its plans and policies so as to achieve success in that dynamic business environment. It is flexible in nature. Flexible in nature means which keeps on changing. Flexible means which can be changed. जैसे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसी डांसर जो होते हैं उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कहीं भी जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं. तो प्लानिंग इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल इन नेचर, बिकॉज हमारा बिजनेस जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करता है. तो अगर उस डायनामिक इन्वायरमेंट में आपको अपने बिजनेस को चलाना है, आपको उसमें सक्सेस अचीव करनी है, सो यू हैव टू मेक अप्रोप्रिएट चेंजेस इन योर बिजनेस प्लान्स ऑल्सो. जैसे मान लीजिए अब आज जो स्थिति है इंडिया में, अब जो भी बिजनेसमैन हैं उन्हें अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रेटजीज़, अपनी पॉलिसीज़ जो है वो रीफ्रेम करनी पड़ेगी इन सारे के सारे चेंजेस के हिसाब से जो इस टाइम इंडिया में चल रहे हैं. सो प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, डायरेक्टेड टुवार्ड्स एफिशिएंसी. Efficiency and effectiveness both are the concept related to management, and a businessman always try to achieve its objective both in an effective and efficient way. So in planning, whatever the plans are formulated, all those plans directed towards efficiency, they will aim at achieving your goal in a efficient and effective way. So these are the features of planning, and now we will study about the importance of planning. What does the importance of planning means? So as we all know that planning is very important for a businessman, because without planning you does not guarantee success in your business. So what are the importance of planning? The first importance is planning establishes unity and coordination. Planning plays a significant role in the establishment of unity and coordination among various resources. Either it may be like man, material, money and all other resources. देखिए प्लानिंग जो है वो हमेशा यूनिटी और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है सारे के सारे रिसोर्सेज में, क्योंकि प्लानिंग में जो है हम प्लान्स बनाते हैं और प्लान्स जो है वो हमेशा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, और हम
एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह से, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जब प्लान्स बनाती है तो दे डिसाइडेड कि क्या क्या चीज़ें जो है वो किस तरह से होनी चाहिए ताकि सब में जो है वो यूनिटी और कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे. द सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. We can, as we all know that future is uncertain and risk oriented. Future में क्या होना है, what will occur in tomorrow we cannot say with certainty, but we can forecast about future events. हम जो है वो forecasting कर सकते हैं, हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं. सो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो जिससे आपको फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटीज़ आती है, जो भी फ्यूचर इवेंट्स हैं जो अनसर्टेन हैं, उनके लिए आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं. द थर्ड वन इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. एज प्लानिंग प्लेज एन एसेंशियल रोल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. क्योंकि स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किस तरह से जो भी रिसोर्सेज हमारे बिजनेस में हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा. जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो एडवांस में ही डिसाइड कर ली जाती है. किस बंदे को क्या करना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो एडवांस में डिसाइड कर ली जाती है. सो इससे इंश्योर हो जाता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा, कोई भी वेस्टेज जो है वो ना हो. इट प्रोवाइड डायरेक्शंस. प्लानिंग जो है वो आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाती है. फॉर एग्जांपल आप टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है, तो वो टाइम टेबल आपको डायरेक्शंस देता है कि आज मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है. इसी तरह से जब एक बिजनेसमैन जो है वो सारा का सारा प्लानिंग करता है कि मुझे आने वाले टाइम में क्या करना है, सो दैट प्लान्स, दोज प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज प्रोवाइड्स हिम द डायरेक्शन टू डू द फ्यूचर एक्टिविटीज़. आज जैसे मान लीजिए मैं कोई भी बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, तो अगर मैं सोच लेती हूँ कि इस महीने मेरा टारगेट ये है, इस महीने मुझे ये करना है, इस महीने ये करना है, तो ऑल दीज प्लान्स जो मैंने बनाए हैं इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, दे विल प्रोवाइड मी द डायरेक्शन टू डू द एक्टिविटीज़ इन अ प्रॉपर वे. ओके, सो प्लानिंग जो है वो हमेशा हमें डायरेक्शंस, जैसे जीपीएस हमारे फ़ोन में होता है वो हमें डायरेक्शंस देता है, उसी तरह से प्लान्स अगर आप बनाते हो, आप पेपर्स पे प्लानिंग कर लेते हो पहले से ही बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटीज़, तो वो आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाती हैं. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. एक्चुअली प्लानिंग में जो है वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स डिसाइड किए जाते हैं. देखिए, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है, वट एवर द एम योर बिजनेस हैज़ डिसाइडेड, उसी एक एम को अचीव करने के लिए देर आर सो मैनी अल्टरनेटिव्स. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स the decision making procedure, because whatever the alternatives you have decided, then you analyze those alternatives, their benefits and their advantages and disadvantages are known, and after that the best alternative will be selected and implemented in the business. Reduces the risk, this one we have already studied. Standards for controlling. As in planning we put the standards that what we want to achieve, how we will achieve it. So आप टारगेट सेट करते हैं, आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एंड इन कंट्रोलिंग व्हेन इन द एंड ऑफ द ईयर यू डू द कंट्रोलिंग प्रोसेस, यू एनालाइज योर बिजनेस एक्टिविटीज़, देन यू विल कंपेयर योर स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट योर परफॉर्मेंस, वट यू हैव अचीव्ड एंड वट यू हैव डिसाइडेड. सो इट प्रोवाइड यू द बेस फॉर कंट्रोलिंग. रिड्यूसेस वर्थलेस एक्टिविटीज़. वर्थलेस मीन्स वेस्टफुल. एज इन प्लानिंग ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस कि क्या करना है, किस तरह से करना है और कौन करेगा, सारी की सारी चीज़ें हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं. तो देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. किसी भी तरह का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, और अगर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी. वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो आपका बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो है वो आपके बिजनेस में हो पाएगा. प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. एज प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. देखिए, हर कोई जो है वो प्लानिंग नहीं कर सकता है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. मेंटल एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप सही मायने में जो है वो प्लानिंग कर पाते हैं. सो वेन एवर वी प्लान, न्यू आइडियाज़ केम इन आर माइंड, कम्स इन आर माइंड, एंड देन इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. क्योंकि एक ही काम करने के बहुत तरीके होते हैं. जैसे मान लीजिए आप कुछ भी बनाते हैं, उस चीज़ को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. तो अगर आप बार बार ट्राई करेंगे, नए नए आइडियाज़ सोचेंगे, तो आपके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज़ अपने आप आने लग जाएंगे. सो प्लानिंग जो है वो एक थिंकिंग प्रोसीजर है, थिंकिंग प्रोसेस है. तो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतने ही ज़्यादा नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो हमारे माइंड में डेवलप्ड होंगे. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग.
that it provides you the directions, helps in decision making, reduces the risk, standards for controlling, reduces worthless activities and wasteful activities, and promotes innovative ideas. So, it is important for each and every businessman to do the proper planning because it will provide you the most benefits. It provides you the best result if you do something by proper planning. आप पहले से डिसाइड करके अगर कोई भी काम करते हैं तो वो आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करवाता है. ओके, सो नाउ सी एट द पिक्चर. इट इज़ अ कार्टून पिक्चर. इसमें देखिए एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से रहता है कि लेट्स हैव अ लिटिल प्री मीटिंग टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग टुमारो. वाओ, हुआ, डू यू थिंक इट्स सेफ टू जंप राइट इन द प्री मीटिंग विदाउट प्लानिंग इट. सो उसमें वो पहले जो मीटिंग उन्हें कल अटेंड करनी है उस मीटिंग के लिए वो पहले प्री मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से हम कल वाली मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, क्या हमें उसमें करना है. सो प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर बिजनेसमैन के लिए. बिजनेसमैन के लिए भी नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग इन एडवांस तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न जो है वो माइंड में क्रिएट नहीं होता है. आप कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर जो हमारी सिचुएशन होती है, यानी कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू ग्रो, प्रेजेंट स्टेटस और फ्यूचर स्टेटस का जो ट्रैप होता है, जो ब्रिज होता है, उसे प्लानिंग ही कवर करता है. इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन द प्रेजेंट स्टेटस एंड द फ्यूचर स्टेटस, दैट इज़ वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. इफ़ यू वांट टू बिकम अ CA, देन स्टार्ट प्लानिंग and that planning will help you to achieve the position of CA.